ceremony symbolizing the light of knowledge and wisdom. Aspiring Young Scientist Award 2024-25 आणि या सगळ्यांमध्ये मान्यवरांच्या ठिकाणी आगमन ही चित्रकरण सुरुवात ऑर्गनाइज बाय डॉक्टर होमी भाभा फाउंडेशन. Thank you. Thank you so much. I now invite Dr. Asma Fatima ma'am, Director of Dr. Homi Bhabha Education Foundation to address the gathering. Let's welcome Dr. Asma Fatima ma'am on stage. गेल्या काही दिवसांपासून किंवा गेल्या वर्षांपासून प्रत्येक विद्यार्थ्यांमधली तळमळ, मग तो गावातला असो, गावाकडचा असो किंवा कुठलाही असो, त्या अनुषंगाने त्याचं टॅलेंट बाहेर येण्यासाठी उसकी जो एनर्जी है, उसका टैलेंट बाहर निकलने की जो एक एनर्जी, उत्साह है, उसके पीछे का जो बैकबोन है आदरणीय आसमा मॅम, जरा गिव बिग हँड, जरा जोरदार टाळ्या व्हायला पाहिजे. मी विनंती करतो की आपण या ठिकाणी सगळ्यांना मार्गदर्शन करू. थँक्यू. A very good afternoon to one and all. First of all, I would like to welcome all the dear parents, dear teachers, dear students and all the dignitaries on and off the dais. I am privileged to have you all here and we are blessed to have so many privileged persons to address you all today. So the chief guest of our function, Padma Bhushan sir, Padma Bhushan Professor J.B. Joshi sir, Honorable Haji Arfat Sheikh sir, and Dilip sir and all the dignitaries present on and off the dais, I first of all welcome you all to this event. आयसा ये जो हमारा इवेंट है, ये सिर्फ एक अवार्ड फंक्शन नहीं है. इट इज़ एन अवार्ड फंक्शन टू सेलिब्रेट द साइंटिफिक लर्निंग ऑफ यंग माइंड्स. सो I would like to say that as we have gathered for the ISA award ceremony, I am filled with gratitude and hope. Not because I see this, the hall is filled not because of that, but because I see powerful forces, a community that believes in the transformation power of education. So I welcome you all to ISA. Now, the Dr. Homi Bhabha Foundation was born with the vision of scientific learning. And today is the day we see that the vision is coming to its fulfillment. But this is just the beginning. Now, we have always believed that talent is everywhere, in big cities and in rural cities. So I am very happy to first of all share with you that we have 1.72 lakh students participated in our mathematics and science Olympiad, that is MSAT, and this Olympiad is run for 7 to 10 standard students. Equally, we have an Olympiad running for 5th and 6th standard students by the name of GRADE. And what do you think? 7 to 10 से ज़्यादा share आएगा students का या 5th and 6th से ज़्यादा share आएगा? Because 7 to 10th have 4 classes, correct? 7th, 8th, 9th and 10th. लेकिन 5th and 6th standard में सिर्फ 2 ही classes है. But if you compare the ratio, the parents and teachers are more enthusiastic at the lower levels. So GRADE also has a great participation of students. So we are here to honor them. Now over the years, through our science model competition, we are not only running the Olympiad, but we are also running a science model competition. We are also running teachers grooming program, and we are happy to give our share in improving the educational sector, whatever bit we can do. But do you think that whatever we are learning is sufficient? The future belongs to robotics and AI. Do you agree with me? Yes. So hence, keeping our first foot in this direction, we are here for launching of our new Olympiad, that is the AI and Robotics RoboQuest. It is the India's first robotics Olympiad for school students. In this Olympiad is not just for winning prizes, but we want to educate our young generation so that they can
bear shoulder to shoulder with the upcoming technologies that are being studied in higher standards. So we want to give an edge to the students, giving them a platform to learn these robotics and AI at a lower school level. So this is not just a competition, it's a mission to make robotics and automation accessible and exciting for every students. From 5th to 10th standard students are requested to have a look about the robotics, but the Olympiad will only run for 7 to 10 standard students because 5th and 6th standard students are comparatively younger for this learning. Now, I thank the incredible team of Dr. Homi Bhabha Foundation. We call it DHBF because Dr. Homi Bhabha Foundation थोड़ा सा बड़ा हो जाता है. So we call it DHBF, who works relentlessly behind the scenes, are passionate educators who believe in change and are visionary partners who walk this path with us. I now call upon all the respected guests, Haji Arfat Sheikh sir, Honorable Haji Arfat Sheikh sir, Professor Padma Bhushan sir, Dilip sir, to please come and inaugurate this RoboQuest for us. दिलीप हेरोळकर सर. I please call the respected honorable guest to please cut the ribbon and launch this RoboQuest for us. To our dear students, you are not the leaders of tomorrow, you are the leaders of today. Never stop asking questions, never be afraid to fail, because each failure is a step closer to greatness. The medals you receive today is not just an award, it's a reminder that you carry the power to change the world. Thank you. Thank you so much, Asma ma'am. I now invite Mr. Vidyasagar sir to speak briefly about the RoboQuest, its support system, and how it will change the way we learn about robotics. Hello everyone, can we please have the video? We'll just have a quick glance at what we are about to start with the partnership of Homi Bhabha Foundation. Dr. Homi Bhabha Foundation. So we'll just have a quick look about what exactly is this RoboQuest, and then we'll proceed with the presentation, that how exactly this exam will roll out and everything related to this exam. So we'll have the video right now. Five, 4, 3, 2, 1. Robotics and artificial intelligence are not just the future, they are the present. What once seemed impossible is now everyday reality, thanks to rapid technological innovation. In the world of robotics, this pace is accelerating faster than ever. In this fast-moving era, it's time to prepare your children to not just keep up, but to lead. Introducing RoboQuest, the gateway to a future-ready generation. Presented by Dr. Homi Bhabha Foundation, RoboQuest Olympiad is here. Let's have a round of applause for Dr. Homi Bhabha Foundation to start a venture
like this. Olympiads काफी होती रहती है. Sir, please you can have a seat, sir. Please dignitaries, have a seat. Yeah, sir. Olympiads ऑल ओवर इंडिया में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में काफी होती ही रहती है, बट ओलंपियाड्स नीड टू लेवल अप नाउ. हमें हमारे स्किल्स को लेवरेज करने के लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए है जो कि मैचिंग इंडस्ट्रियल सिनेरियोस को केटर कर सके इन ऑर्डर फॉर यू स्टूडेंट्स टू बी एम्प्लॉयबल. नाउ विल प्रोसीड विद द प्रेजेंटेशन. EPSS. How many of you have heard the word robotics and AI in recent times? अभी ही यही प्रोग्राम में 3 से 4 बार आप लोगों ने सुन लिया, राइट? Can we raise your hands? किसने सुना है robotics and AI? How many of you are excited to learn this new skill? So my name is यश विद्यासागर और ये जो RoboQuest ओलंपियाड है, ये ओलंपियाड्स को हमने अलग-अलग लेवल्स में कैटेगराइज किया है, जो कि आप लोगों को ओवर अ कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर आपको ये सीखने के लिए मिलेगा. सो रोबोक्वेस्ट एक नेशनल लेवल ओलंपियाड रहने वाली है, एज आई हैव टोल्ड अर्लियर, जिसमें आपको सीखने के लिए मिलेगा. अभी तक जो ओलंपियाड्स आप लोगों ने देखी है उसमें सिर्फ आप खुद प्रिपेयर करके पढ़ाई करते हो एंड यू गो फॉर द एग्जाम, जो कि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगी, और वो एग्जाम में अगर क्वालिफाइंग क्राइटेरियाज होते हैं तो यू गेट क्वालिफाइड और फिर आपको उसका रिकॉग्निशन मिलता है. बट रोबोटिक्स बीइंग अ न्यू सब्जेक्ट, आपको यहाँ पे ये सारी चीजें फ्रॉम स्क्रैच सीखने के लिए मिलेगी. तो कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड? अगेन नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पे 21st सेंचुरी स्किल सेट्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे. हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस रहेगा आपको. आपके ओलंपियाड के अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया तो आपके साथ रजिस्ट्रेशन के साथ यू विल आल्सो गेट अ किट, जो किट में आपको सारे सेंसर्स, डेवलपमेंट बोर्ड्स, कनेक्टिंग वायर्स, सारे कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स के आपको उसके साथ ही मिलेंगे इन द रजिस्ट्रेशन इटसेल्फ. एंड इससे आपकी क्रिएटिविटी भी बूस्ट होने वाली है. सो दिस इज अ क्वाइट यूनिक वे टू स्टार्ट और लेवल अप द ओलंपियाड गेम. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होने वाला है. विल बी हैविंग 2 लेवल्स फॉर दिस कंप्लीट ओलंपियाड. लेवल 1 विल बी अ ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम, ऑनलाइन बेस्ड लेवल. इसमें आपको 20 to 25 ऑनलाइन सेशंस का एक्सेस मिलेगा एट द डॉक्टर होमी बाबा फाउंडेशन की वेबसाइट पर ही, जो पोर्टल उनका रहेगा. इट इज LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. उसके ऊपर जैसा आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा होगा, अनअकैडमी, बायजूस वगैरह का लर्निंग प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर आप वीडियोस देख सकते हो. सो इसी तरह से यहाँ पर आप वीडियोस देख सकते हो, साथ ही साथ आप प्रैक्टिकल्स भी लाइव कर सकते हो. इसमें आपको जो टॉपिक कवर किए जाएंगे, दैट आर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर इंटरफेसिंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग. हर एक प्रोजेक्ट से हम आगे बढ़ते जाएंगे. जस्ट सिंपल एग्जांपल आई विल गिव यू. ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट कंट्रोल सिस्टम. शाम अगर होती है तो स्ट्रीट लाइट्स ऑन होने चाहिए, अगर दिन होता है तो स्ट्रीट लाइट्स ऑफ होने चाहिए. सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टम, जो सीसीटीवी का कैमरा कंटिन्यू सर्वेल करते रहता है एक पर्टिकुलर एरिया को, वो एरिया वो पूरी सिस्टम कैसे बनाई जाए. इंटेलिजेंट कार पार्किंग सिस्टम्स, ऑटोमेटिक हैंड ड्राइव सिस्टम, ऑटोमेटिक वाटर लेवल अलार्म इंडिकेटर सिस्टम. ये सारे सिस्टम्स आप ये लेवल 1 में सीखने वाले हो. लेवल 2 में आप जब क्वालिफाई करते हो, लेवल 1 की एग्जाम देकर, लेवल 1 की एग्जाम होगी हमारी ऑनलाइन MCQ बेस्ड एग्जाम. उसमें थियरी का पार्ट भी आएगा और प्रैक्टिकल का पार्ट भी आएगा. सो जब आप ये लेवल क्वालिफाई करोगे तब यू विल एंटर इनटू लेवल 2. लेवल 2 में ऑफलाइन आपको 3 दिन की ट्रेनिंग मिलने वाली है. 3 दिन का ट्रेनिंग मतलब वो वर्कशॉप रहेगा, जो वर्कशॉप 3 दिन के लिए रहेगा, और उसमें आपको फिर एडवांस AI और ML बेस्ड प्रोजेक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे. उसकी जो फाइनल हमारी इवैल्यूएशन सिस्टम रहेगी, दैट विल बी बेस्ड ऑन अ प्रोजेक्ट सबमिशन इवैल्यूएशन मेथड. सो विल बी हैविंग अ नेक्स्ट स्लाइड. रोबोटिक किट, वीडियो सेशन से सारी इसका एक्सेस मिलने वाला है. द नेक्स्ट स्लाइड. ऑफलाइन वर्कशॉप्स, जैसे कि लेवल 2 का हमारा स्ट्रक्चर रहने वाला है. ऑफलाइन वर्कशॉप्स, AI एंड ML इंटीग्रेशन उसमें रहेगा, एंड लाइव प्रोजेक्ट्स. नेक्स्ट स्लाइड. जो इसका अवार्ड से रिकॉग्निशन रहेगा, सो सबसे मेन चीज ये किस
क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये अवेलेबल रहने वाली है एग्जाम. सो 7th, 8th, 9th और 10th ऐसे 4 क्लासेस के लिए ये एग्जाम अनाउंस करने जा रहे हैं हम. एंड द कैश प्राइजेस फॉर ईच क्लास विल बी like this: 31,000 for the first rank holder, 21,000 for the second rank holder, and 11,000 for the third rank holder for each class. Level 1, level 2 and दोनों के लिए. और लेवल 2 के लिए जो क्वालिफाई करेंगे उनके लिए हमारे पास स्पेशल रोबोटिक किट्स भी रहने वाली है. जैसे कि Arduino Elvic नाम की एक रोबोटिक किट है. दैट इज अ वेरी इंटेलिजेंट रोबोट. Pololu 3πD ऐसे अलग अलग रोबोट्स आपको एज अ कंसोलिडेशन प्राइस भी आपको, अगर आप लेवल 2 में क्वालिफाई करते हो तो आप लोगों को मिलेगा. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. स्कूल्स का इसमें कैसे पार्टिसिपेशन और स्कूल्स के लिए कैसी एंगेजमेंट रहने वाली है. सो यू नीड टू प्रमोट दिस ओलंपियाड ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर पाए और रोबोटिक्स एंड एआई हम रूरल लेवल तक भी स्टूडेंट्स तक लेके जाए. बिकॉज दिस इज द फ्यूचर, दिस इज द फ्यूचर, दिस इज द फ्यूचर. ये तो सुन लिया हमने पास्ट में, बट रोबोटिक्स इज नाउ द प्रेजेंट. रोबोटिक्स अभी प्रेजेंट में. यू मस्ट हैव सीन द वैक्यूम क्लीनर वाला रोबोट, सभी ने देखा होगा. सोफ्याच्या खाली घुसून तो साफ करतो सगळं, राइट. सो वैसे रोबोट्स अभी प्रेजेंट में एग्जिस्ट करते हैं. सो रोबोटिक्स एंड एआई इज द प्रेजेंट. चैट जीपीटी इट इज एआई. ये प्रेजेंटेशन आई हैव मेड दिस यूजिंग गैमा. दिस इज एआई. मैंने सिर्फ इसमें 100 वर्ड्स का प्रॉम्प्ट दिया है एंड सी हाउ ब्यूटीफुल दिस प्रेजेंटेशन लुक्स. दिस इज कंप्लीट एआई थिंग. द नेक्स्ट स्लाइड. इसके लिए सिर्फ एक ही चीज आपको मैंडेटरी रहने वाली है जो कि फिजिकल चीज रहने वाली है, दैट इज यू मस्ट हैव अ पीसी और लैपटॉप. क्योंकि यहाँ पे आपको कोडिंग भी सिखाई जाएगी. सो कोडिंग सीखने के लिए आपको अल्टीमेटली और ऑब्वियसली लैपटॉप की रिक्वायरमेंट लगने ही वाली है. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. द सेकंड थिंग, दिस इज अ वेरी पर्सनल थिंग. आपको इसमें एंगेज रहना पड़ेगा. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. क्योंकि अगर 25 लेक्चर्स है और अरे आहे ना खूप दिवस आपण पाहू नंतर, नो, दिस इज नॉट द वे यू शुड एक्झिक्यूट दिस पर्टिक्युलर ऑलिम्पियाड. यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट. एंड द लास्ट स्लाइड. स्टूडेंट्स इससे लर्न करने वाले हैं, सीखने वाले हैं. यू हैव टू क्रिएट सर्टन थिंग्स, यू हैव टू क्रिएट सर्टन प्रोजेक्ट्स और फिर उन्हीं प्रोजेक्ट्स को इनोवेट करके आप लेवल 2 के प्रोजेक्ट सबमिशंस में वो प्रोजेक्ट्स आपको सबमिट करने हैं. एंड अकॉर्डिंगली वी विल हैव अ ब्यूटीफुल विनर लिस्ट आउट ऑफ दिस रोबोक्वेस्ट ओलंपियाड. सो आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर दिस रोबोक्वेस्ट ओलंपियाड दैट वी जस्ट अनाउंस्ड? कुठे गेला जोश तुमचा? आर यू रियली एक्साइटेड स्टूडेंट्स? आई एम आस्किंग यू. And I congratulate the students who stood topper in the previous Olympiad, जो हमारी होमी पापा फाउंडेशन की है. I congratulate those students and I look forward to see you guys as toppers in this RoboQuest Olympiad as well. So thank you very much and I thank Dr. Homi Baba Foundation to lend me some 15 minutes over here to talk in front of you, and I thank the dignitaries on and off the dais. Thank you very much. Thank you so much.